सो आरडी लुक्कड़ सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका हम स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म में सर। थैंक यू। आरडी लुक्कड़ सर जैसे कहा है कि भाईंदर के बहुत ही सीनियर मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग, शायद बहुत ही सब हमारे मेरा भाईंदर रीजन के फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे, बहुत ही पहले से मोर देन 40 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और केसीएफ मेरा भाईंदर चैप्टर के फाउंडर चेयरमैन है ये, और एपेक्स बॉडी के भी चेयरपर्सन रह चुके हैं। इसी के साथ सर लायन के भी मेंबर है, और बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, काफी संस्थाओं से। आप इनके कैबिन में, इनके पीछे जो ट्रॉफीज जो आपको दिख रही है तो बहुत छोटी है, बहुत कम है, बाकी इनकी जो उपलब्धि है वो इनसे भी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप 2 पंक्ति आप हमारे बीच आपके शेयर कीजिए सर। ओवर टू यू सर, लुक्कड़ सर। Welcome to all of you. Thanks for inviting me. Hello, welcome to all of you and thanks for inviting me. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Vivek ji, Now- proceed, sir. Now I request Daya Bansal to introduce our first speaker, Sandeep Jain. Over to Daya. Daya, unmute yourself. हेलो, मैं तो तूने वहां बोल दिया ना, इसमें चलो मैं पहले करने वाली, इसके बाद देता हूँ। दया जी, are you there? Unmute Daya. हाँ, now Sir, I'm unmute already. yes, yeah, हाँ. Yeah, please. Vijender sir, Yeah, there. Vijender sir, I shared the profile of the Sandeep sir or wrong sir? First, the speaker is. Very good evening, one and all. We welcome you in the ocean of the rejoice. We recognize the presence of chief guest of the today, आरडी लुक्कड़ सर, जिन्होंने रिजॉइस ऑफ द ओशन का आज इनॉग्रल किया, और हमारे लर्नेड स्पीकर हमारे बीच में संदीप जी जैन और रोहित जी खंडेलवाल है। उन सबका हम लोग बहुत बहुत अभिवादन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और लायंस ये विवेक जी जैन के मार्गदर्शन से, जो बोरकर मजुमदार के पार्टनर भी है और हमारे रिजॉइस के साथी है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम बहुत अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ दोनों कोऑर्डिनेटर्स दया बंसल और अंकित जी जैन, जिन्होंने प्रोग्राम को हमको डिजाइन करके दिया, उनका हम बहुत अभिनंदन करते हैं। एंड वी वेलकम यू ऑल, एंड आई रिक्वेस्ट गुंजन जैन, फर्स्ट लेडी ऑफ द क्लब, टू वेलकम द टुडे लर्नड स्पीकर संदीप जी जैन आफ्टर रोहित जी खंडेलवाल, led by the Daya ji Bansal. Over to you, Gunjan. Good evening, all my seniors, Rejoice members, and my fellow participants. Request, this is my privilege that this profile reading is being given to me. I am honored that I am able to read the profile of Mr. Sandeep Jain. Thank you, CA Lion Vivek Jain sir, for giving me the opportunity, and the other Rejoice members, to introduce our renowned CA Shri Sandeep Ji Jain, who is from our own Bhandar region. Regarding Sandeep sir, I would like to tell you that he is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants. He is also proprietor at Shri Sandeep F. Jain and Associate, having 24 years post-qualification experience in the field of audit, direct and indirect tax. He is also convener of Bhandar CP Study Circle in the year 2017 and 18. He is one of the prime movers of Bhandar CS Social Group. Furthermore, he is also committee member of JCAF Bhandar since inception. He is being nominated as a member of Ethical Standards Boards Committee of WRC of ICA for the year 2020. Key achievements are: he is also convener of Bhandar CPE Study Circle and has been awarded as the best chapter circle under small CPE Study Circle category for the first time ever by WRC of ICIS. The achievements doesn't stop here, but looking at the time, I hand over to Vivek Jain to proceed further. Thank you, all of you. Thank you, Gunjan, to give you the very brief introduction of our London Sandeep ji. Now over to Daya to give the introduction of Rohit ji. Unmute. Daya, unmute.
Thank you, Vivek sir, and thank you to the Rejoice team for the giving me this opportunity and share the profile of the Rohit sir. Already I shared with the Vasai branch seminar also. Second time receiving this opportunity, and thank you everyone. The profile, as we all know, that Rohit Khandelwal is a fellow member of the ICAI and associates member of ICSI also. He is a partner of Spark and Associates as Indore-based leading chartered accountant firm. He is heading the corporate consultancy wing of the firm. He is in professional academy, well known in Indore, that is Nahata, faculty of the Nahata Professional Academy, teaching the CA and CS student. He is qualified independent direct exam conducted by Indian Institute of Corporate Affairs, completed course from the Harvard University, and registered valuer also. So the profile is very fast. He has a vast experience of more than 8 years of teaching financial management, corporate valuation, and securities, close to CA, CS, and MBA student. The profile is very vast, but looking at the time, I would like to hand over to Vivek sir for the further proceeding. Thank you, sir. Thank you, Daya, to give you the very brief introduction of Rohit ji. Now, I invite you, our Chartered President Vijendra Jain, to giving our welcome remarks. Then we'll ask our speaker to start the session. थैंक यू लायन सी विवेक जी जैन। हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं, हमने रिजॉइस की एक ओशन की शुरुआत की है कि हमारी ब्रांचें तो इंस्टीट्यूट तो करती है सारे प्रोग्राम, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि पेंडेमिक के बाद हमें उन चीजों को टाइम टाइम पे समझना जरूरी होता है। तो हमारा रिजॉइस एक 40 चार्टर्ड अकाउंटेंट का समूह है और उसी से हमने एक कोशिश की है कि हम एक नए प्रोग्राम्स, एक कुछ अलग प्रोग्राम हम लेके आए जो पेंडेमिक के बाद आप लोग के साथ जुड़े रहे। सबसे ज्यादा साधुवाद, धन्यवाद और सादर चरण स्पर्श मैं आरडी लुक्कड़ सर का करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से प्रोग्राम शुरू हुआ है। और हमारे सबसे सीनियर मीरा भाईंदर के प्राइम मूवर संदीप जी जैन, जो हमारे से एक हमने रिक्वेस्ट किया कि सर एक प्रोग्राम लेना है, तो उन्होंने हमारी एक रिक्वेस्ट पे हाँ कर दिया है। तो और नितेश जी कोठारी और जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शुरुआत करते हैं पहली कड़ी संदीप जी जैन से। ओवर टू यू संदीप जी एंड टेक द चार्ज। Thank you, Vijendra Bhai. Am I audible? Yes, sir. Please. Okay. Thank you so much. Thank you for wonderful introduction. And thank you, Lion Club of Rejoice, for giving me this opportunity to share some of the knowledge which I have derived in this section. I thanks or recognize the presence of R.D. Lukkad Sahab. Thank you, Vivek ji. Thank you, Rohit ji. Thank you. Special thanks to Vijender for inviting me on this forum, for giving or sharing my thoughts on the topic allotted to me. I am delighted to share my view on the topic allotted to me, but at the same time, I am also one of from you. So please pardon me if I make any error in my presentation or in my vocabulary. Please pardon me. I remember the days when there is hardly any compliances required for the TDS. Only once in a year or a annual return was there to file. वो भी एक बुक आती थी TDS के रिटर्न्स की, उसके ऊपर जो जिसका इसका हमने TDS का पैसा भरा है वो एक पेपर पे एक बुक आती TDS की सेक्शंस की, वो बना के दे देते थे और compliance complete हो जाता था. But now the scenario has changed drastically. Now to begin with, पैसा कुछ नहीं पर सब कुछ करने के लिए पैसे की जरूरत है. So this is our theme for the day. So let us start your session. Screen sharing is option available. Vijendra bhai. Yes, Sandeep bhai, you can share your screen. Just a minute, I'll just share the screen. I'm sorry if I not taken a name of any of the coordinator or a person who has done the wonderful job on preparing and keeping the seminar. Especially thanks Daya Bansal and Ankit Jain and the Lion Manish President, Lion Jitendra Kothari, Lion Ankur Mangal, and Ryan Rajesh Jain. And a special thank you our
prime mover Nitesh Kothari also joined with us. I'll start my presentation and sharing the screen for you. Screen sharing is there? Yes, now it's Yeah. yes coming. Yeah, we can see now. Okay. Okay. So just a minute now. Yeah, perfect, sir. Okay, I can't see myself here. Just a minute. Screen is coming, sir. Screen is coming, but at the same time, this is also coming. Just a minute, I just have to reduce this. Okay. So now compliances of TDS and TCS read with section 194Q, 206AB and 206CCA. Higher or double rate. This is the new section is going to effective from 1st July 2021. So what we are covering today, आज हमें क्या-क्या cover करने वाले हैं? That is section 194Q, section 206AB, section 206CCA, effective from, and the compliance checks through PAN on income tax portal. So these are the basic 5 topics we are going to cover in the next few minutes. Vijendra ji, just let me know when I have to stop. Just give me a 2-3 minutes advance notice so I can stop myself and complete lesson accordingly. Sir, this is your platform. Please go as per your choice. Thank you. Thank you. So now, लाने का क्या पर्पस हो सकता है? 194Q, 206AB and 206CCA. This is the first time these all sections we are looking into from since our Finance Act has been enacted. So 94Q is like on TDS on purchase, 206AB is higher and double rate of taxes. So what is the purpose of that? Transactions, you have to answer that. To maximize revenue collection at early stage, to increase tax or increase tax base. So these are few questions I have in mind. कि ये सब sections लाने की क्या requirement हो सकती है? So let us see in detail and come to some conclusion after the session. शायद इनमें से शायद अपने सारे questions resolve हो सके कुछ. एक जमाना था जब TDS, see this is the detail what I have taken from the income tax side. Like I said earlier, कि TDS को कहीं कुछ ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, सिर्फ एडवांस चेक और सेल्फ असेसमेंट पे कॉन्सेंट्रेट होता था टैक्स कलेक्शन के लिए. लेकिन last few years, if you see, the range has been increased so much. ये data है up to 2016-17, 3,60,631 crore is the collection through the TDS, and advance tax is only 4,11,000. So in total, out of 10 crore, 10,12,000, TDS has a 36% of the share in the year 2016-17. It must have been increased drastically. Now the government want to be increased in that manner only. This is the reason they have introduced this type of section where they get early stage of collection, covered, uncovered transactions, and lot more. Let's see. First, start with the section 194Q. What it says: any person being a buyer who is responsible for paying any sum to any resident for purchase of any goods. See the heading: purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year shall at the time of credit or such sum to the account of seller or at the time of payment thereof any mode whichever is earlier, deduct an amount equal to 0.1% of such sum exceeding 50 lakh rupees as income. This is the basic section which says about the deduction of 194Q at the rate of 0.1% on purchase of any goods. Let us understand in detail. The provision of this shall not apply to a transaction on which tax is already deductible under this provision, under some provision of the Act. Tax is collectible under the provision of 206C other than a transaction to which subsection 1H of section 206C applies. 206C is what? 206C 1H has been introduced last year and effective from 1st October 2020.
on transaction of sales. Earlier government had introduced to collect tax collection on TCS basis on the sale transaction. Now they have come up with the purchase of goods TDS transactions, but this transactions or some these sections does not apply to purchase of goods in the course of import services, because services are already covered by various sections of the act, like 194C, 194H, 194J. They are already covered, so this will not impact the earlier section, other section of the act, but apply to the transaction of purchase of goods by any entity. It applies to even purchase of goods by a services oriented entity like bank, financial institute, and insurance company who are not doing a trading, but specifically in the field of services. That also apply if they are purchasing any goods above 50 lakh rupees and their turnover is prescribed as per the law, that is 10 crore. So let us move further. TDS on purchase of goods. Section 95 applies to assessee whose turnover is more than 10 crore in financial year 2021. Being a first year, we have to look 10 crore turnover for the past previous year 2021. TDS to be deducted if purchases is more than 50 lakh rupees. So it is very much clear, if your turnover is 10 crore, then only this section will attract to you. If your turnover is less than 10 crore, you are not coming into this section. Second condition, if your purchase from a single party exceeds 50 lakh rupees, अगर आपका purchase किसी एक पार्टी से 50 लाख रुपए के ऊपर परचेज जाता है, तभी आपको 0.1% के बेसिस पे टीडीएस काटना है. ये सेक्शन क्लियर नहीं है सेक्शन के अंदर की अमाउंट जो परचेज का है वो विद और विदाउट जीएसटी देखना है. अकॉर्डिंग टू अस, we are presuming, it is our opinion, according to us, it should be without GST, because part of purchase is a part of collection of tax. So according to our view, 0.01 should be collected, it should be deducted on the purchase value exceeding 50 lakh rupees on the without GST. If PAN is not available, TDS rate will be 5%. I am surprised to see this. PAN is not available. When PAN is not available, why PAN is not available is there? I don't know. मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई ये सेक्शन में ये चीज क्यों डाली है. 50 लाख के ऊपर अगर कोई आदमी बिजनेस करता है, क्या उसके पास पैन नंबर नहीं होगा? क्या वो जीएसटी नंबर नहीं लेगा? जीएसटी नंबर मिलता है बिना पैन के? नहीं मिलता है. सो आई डोंट नो व्हाई दिस, लेकिन कंडीशन है तो आपको 5% टीडीएस काटना है. TDS prevails over TCS 194Q and 2061H after 1st July. करंट सिचुएशन में 30 जून तक जो भी आप परचेस कर रहे हो, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर भी है तो भी आपको टीडीएस नहीं काटना है. अगर आपकी पार्टी जिससे आप वो आपको टीसीएस चार्ज करता है तो वो टीसीएस चार्ज करेगा टिल 30th June 2021. आफ्टर 1st जुलाई अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, 10 करोड़ के ऊपर है और आप उस पार्टी से परचेस कर रहे हो जिसका टोटल परचेस आपका 50 लाख के ऊपर चला गया, उस सिनेरियो में आपको टीडीएस काटना है. यू हैव टू इन्फॉर्म योर पार्टी कि भाई आज से आप आपके सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर ऑन नॉन जीएसटी अमाउंट. So to understand this with a practical approach, cases where assessee's turnover is 10 crore and above. So purchase up to 30th June was 15 lakh rupees. Purchase from July 20 lakh rupees. TDS and amounted no TDS since the total purchase amount is below 50 lakh rupees. Second condition is 15 lakh rupees up to 30th June. Then you purchase 40 lakh rupees TDS at the rate of on 5 lakh. Total purchase exceeds the applicable limit. 5 lakh purchase up to 30th June. After that, it is purchased 70 lakh rupees. We have to take care that 50 lakh rupees is exempt. First 50 lakh rupees is a basic limit. We have to exclude that, and the balance amount 25 lakh rupees पे 0.1 TDS काटना है. Total purchase exceeds the applicable limit. So because of that, we are deducting 0.1% on the amount of 50 lakh rupees. अब परचेज अप टू 30th June 75 लाख ऑलरेडी हो चुकी है.
1 जुलाई के बाद में आपने 10 लाख का और परचेस किया है तो आपको पूरे 10 लाख रुपए पे 0.1% के हिसाब से टीडीएस काटना है. इज दैट क्लियर? परचेस अप टू 30th June, no PAN. No PAN is available. From 1st July, no PAN. So in this case, 5% TDS काटना है. Okay. So let us move to next slide to understand this in what stand to take for 194Q applicability for below example. See is the scenario. If a person is entering into a transaction of purchase of goods and services both, if he is taking contract, he is taking labor, he is taking annual maintenance contract along with the purchase of material, which are separate from, it is not a combined contract, it is not a purchase karte, goods and services both separately as the case may be. In such situation where the TDS under section 190Q will be applicable. Purchase of goods अगर 45 lakhs का है, purchase of services 3 lakh rupees की है. There is some question. I will have to take question now or we'll have to We will take a question after sessions. After session, okay. Purchase of services 3 lakh rupees. It is aggregate value is 40 lakh rupees. So according to us, no TDS will be applicable under 194Q. 25 lakh का परचेज है, 35 लाख रुपीस की सर्विसेज हमने उन सेम पार्टी से ली है, एक ही पार्टी से परचेज किया है, उसी पार्टी से हमने परचेज ऑफ सर्विसेज भी है, लाइक एनी कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग लाइक दैट. तो उस केस में एग्रीगेट वैल्यू 60 लाख पकड़ेंगे या 25 लाख ही कंसीडर करेंगे. सो क्लियरिटी इज रिक्वायर्ड हियर. अकॉर्डिंग टू अस सेक्शन सेज परचेज ऑफ एनी गुड्स. सो इफ यू टेक दैट व्यू तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है. बट अगर एग्रीगेट वैल्यू की बात करें, अगर अपन लेजर अकाउंट में एक क्रेडिट की बात करें उस पर्टिकुलर पार्टी की, तो 60 लाख के ऊपर जाती है. इन दैट केस वी हैव टू सी कि 25 लाख के 0.1% काटना है और सर्विसेज के ऊपर जो नॉर्मल 2%, 10%, 5% व्हाटएवर द नेचर ऑफ सर्विसेज, उस हिसाब से टीडीएस डायरेक्ट करता है इन डिफरेंट सेक्शंस. सो दिस इज क्वेश्चन अलाइव हियर आल्सो. अगर किसी के पास कोई और व्यू है प्लीज शेयर करें. Purchase of goods is 48 lakh rupees, 3 lakh of services. The condition is same, 50 लाख इंक्रीज हो रहा है. डिफरेंस पे काटना है. 3 लाख के ऊपर सर्विसेज ऑलरेडी जा चुकी है तो उसके ऊपर तो नॉर्मल वे में टीडीएस काटेंगे, या 50 लाख काउंट करके 1 लाख के ऊपर परचेस का जो डिफरेंस अमाउंट है उसके ऊपर 0.1% डिफरेंस करेंगे. सो दिस इज द स्टिल द क्वेश्चन, सिंस दिस इज अ वेरी न्यू लॉ, न्यू provision has been inserted. So clarity may come in some days. Let us see the third condition. 55 lakh rupees का परचेस ऑलरेडी हो चुका है, 10 लाख के सर्विसेज है, तो टोटल एग्रीगेट वैल्यू 65 लाख रुपीस है. बट एट द सेम टाइम 55 लाख रुपीस का हमारा इंडिविजुअल परचेज भी है. सो बट ऑब्वियस है कि 5 लाख के ऊपर आपको टीडीएस काटना है एट द रेट ऑफ 0.1% और 10 लाख के ऊपर नॉर्मल सर्विस के हिसाब से टीडीएस काटना है. बट स्टिल देयर इज अ डाउट कि किसके ऊपर काटना है, 5 लाख के ऊपर ही काटना है कि 15 लाख के ऊपर काटना है. अगेन देन दिस इज द सर्विसेज, देन वी हैव टू रिड्यूस दैट 10 लाख रुपीस फ्रॉम टोटल अमाउंट एंड द 5 लाख के ऊपर जो एप्लीकेबल रहेगा 1% दैट कैन वी कैन टेक दैट. सो इन द केस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्जिस्टिंग टीडीएस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल. तो आज भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सर्विसेज समझ रहे हैं और आज भी टीडीएस काट रहे, सो इट विल नॉट कम इन दिस एम्बिट. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो सेपरेट सर्विसेज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. So this is the 194Q. Now it has made some presentation on comparative and applicability with comparison 194Q and 206H. 194Q, 206H. 194Q are applicable on purchase of goods. 206(1)H is applicable on receipt or sale proceed. Receipts or sale proceeds. Applicability turnover if turnover exceeds 10 crore in previous year. If purchase exceed 50 lakh including GST, or what is the question mark again, if purchase sales exceed 50 lakh including GST, TDS required to be deducted if both are applicable in one transaction. TDS prevails the TCS. So we have to deduct TDS first because TDS says you have to deduct TDS on the basis of amount credited or paid, whichever is earlier. So TDS prevails here and
20618 says आपको जब पैसा मिलेगा तब आपको TCS कलेक्ट करना है. So the first condition satisfies first, so TDS satisfies first, so we have to deduct TDS in all such cases where the seller and the buyer both have the turnover of 10 crore, both are selling and buying each other more than 50 lakh rupees. In that case, TDS prevails. Rate 0.1%. If no PAN, rate is 5%. Effective from 1st July, 194Q, 2061 is already in existence from 1st October. Deducted or collected amount to be paid within 7 days in the next month. So now let us come to 206 AB and 206 CCA, applicability, compliance and compliance check. The main motto of this section to provide assessee to deduct a tax at a higher rate, double or higher rate of applicable on TDS or TCS from 1st July in the case of non-filer as per section 206 AB and 206 CCA. 206 AB says आपको TDS काटना है हायर रेट पे अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन कैटेगरी में आता है तो कोई पर्सन स्पेसिफाइड कैटेगरी में आता है तो आपको TDS काटना है हायर और डबल रेट ऑफ टैक्स से. 206 CCA says अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड कैटेगरी में आता है तो आपको TCS कलेक्ट करना है डबल और हायर रेट. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस कम. So now 206 is a special section to deduct tax for non-filer of income tax return. Now let us understand with this presentation. I'll quickly go to the presentation and let you understand the applicability, the rate, the effective from, and how it will come into effect. So date of applicability, transactions covered, section not covered, applicable rate. So now the date of applicability is first from 1st July. Transaction covered under this section. Which are the transaction covered? DDS is deducted in all cases under the provision of chapter 6A except mentioned in others. Except mentioned in the section. Section has already said something in the section that this section is not applicable to so and so section. So now which are the section not covered? Let us see that. Which are the section not covered? See that. So section 192A सभी को पता है ये TDS का सैलरी का section है. 192 TDS और सैलरी है, so it is not covered under this 206 AB. TDS on withdrawal of EPF, TDS on winning from lotteries, crossword puzzles. 194B, 194BB says TDS on winning from races of horses. It is also special character of income, so it is not covered there. You already have the higher rate of TDS. TDS on income in respect of investment on securitization trust, 194 LBC, and 194N, TDS on cash withdrawal. These are the section 6, almost 6 section which is specifically barred from this 206 AB, where this double or higher rate of tax is not concerned. One more item which is not covered under this is a non-resident who does not have a permanent in India. It is specifically keep aside this non-resident who does not have permanent establishment in India. So what rate it is applicable I already discussed. Twice the rate in force, twice the rate specified in provision, or 5% whichever is higher. Applicable on higher rate is applicable to specified person. Now we have a detailed presentation for the specified person. How to check the specified person? Department has already gave the utility functionality to check the specified person, where you have to charge double or higher rate of TDS in that case. Specified person means who? Who is a specified person? Who has not filed his return of income for both the assessment year relevant to the previous year, immediately prior to the previous year in which tax is required to be deducted, for which time limit of filing of return 139(1) has expired. So in our case, it may be financial 18-19 and 19-20. Once the one section's date is over, we have to, from
previous first assessment year to next assessment year. If we are standing, let's say in 1st October, so the previous year will change. That date will be 1920 and 2021. Financial will be changed. So for that purpose, this section has been inserted in like that way. 2 years have to be checked for which assessment year. As aggregate of tax deducted or tax collected in his case in each of the 2 previous year in rupees 50,000 or more. There is very much confusion in this sentence. Everybody asking कि 50,000 रुपया जो है वो किसका देखना है? मेरा खुद का देखना है, मैंने पूरा 50,000 पूरे साल में किसी का काटा है वो देखना है, एक पर्टिकुलर पार्टी का मुझे देखना है कि मैंने उसका 50,000 रुपए काटा है, या उस पार्टी का खुद का टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट पर्टिकुलर दोनों असेसमेंट ईयर में 50,000 से ज्यादा है या नहीं. यस, हमको वही देखना है. We have to see that only कि उस पर्टिकुलर पार्टी का जिससे हमें टीडीएस हायर रेट पे काटना है, उनका टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट 50,000 के ऊपर गया हुआ है. हाँ, और उन्होंने 2 साल का रिटर्न नहीं फाइल किया है, then that person, that can come under specified category, specified person category. Now, earlier where lot of companies were sending declaration to all the assessees, क्या करना है, हमको डिक्लेरेशन दीजिए, हाँ, आपका टीडीएस डबल रेट में काटना है कि आपने 2 साल के रिटर्न भरे कि नहीं भरे, ये बताइए, आपका 50,000 के ऊपर टीडीएस टीसीएस गया कि नहीं गया. Now to come out all this hardship, now department has come with the functionality. You just have to enter a PAN number. Now you will come to know that this person is under specified category, specified person है या नहीं है. But उसके लिए प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, आपको लॉगिन लेना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा. वो हमने पूरे स्लाइड्स में दिखाया है. आगे यू विल सी, यू विल कम टू नो कि भी आगे वो कैसे काम करता है. टाइम परमिट्स, आई विल शो यू द प्रैक्टिकल आल्सो कि ये कैसे क्या हमने हमारे क्लाइंटों का स्टार्ट किया है. सो आई कैन शो दैट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आल्सो की है कैसे काम करता है, और हाउ यू कैन कम टू नो द पर्सन इज अंडर स्पेसिफाइड कैटेगरी. This is what I have also elaborated here. मैंने आपको बताया कि हमें 2 साल कैसे देखना है. 30 सितंबर के पहले 2 साल हो गए असेसमेंट 1920 and 2021. If the person is not covered under audit, और अगर 1 अक्टूबर हो जाता है और उसके बाद हमें कौन से असेसमेंट उसके देखने, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी पहले. बट जब स्पेसिफाइड पर्सन की मोडालिटी फंक्शनलिटी अवेलेबल होगी है, देन दिस कंडीशन स्टिल देयर, दिस कंडीशन है यहाँ पे, लेकिन हमें इजीली पता चल पाएगा कि ये पर्सन स्पेसिफाइड है कि नहीं. अगर वो स्पेसिफाइड है और पर्सन स्पेसिफाइड कैटेगरी लिस्ट में आता है तो इमीडिएटली वी कैन डिसाइड कि हमें हायर रेट और डबल रेट या व्हाटएवर रेट एप्लीकेबल हैज टू बी डिडक्ट फ्रॉम हिज पेमेंट. सो दिस इज इफ डिडक्ट इज कवर्ड अंडर ऑडिट. तो डेट क्या होगी, ये फंक्शन यहाँ पे ये एलैबोरेट करके दिखाया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट. नाउ 206CA is a special provision of collection of source for non-filer of income tax return. 206C is related to TCS. All the date of applicability, rate of tax, specified person are the same as defined under section 206AB. मैंने ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा. 206CCA collection of tax का like TDS था 206AB. सारे जो रिक्वायरमेंट है एप्लीकेबिलिटी रेट वो सेम एप्लीकेबल है. इसके अंदर द ओनली डिफरेंस इज ये आपको कलेक्शन के ऊपर है, मतलब आपके सेल के ऊपर डिपेंड करता है, और वो आपके परचेज और आपके सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है. So higher or double rate for non-compliances. This is the main reason for introducing this section कि कौन-कौन अभी तक टैक्स नहीं भर रहा है, कौन टीडीएस के कैटेगरी में नहीं आ रहा है, उन सबको उस कैटेगरी में लाने का, उनको डबल टैक्स काटने का, या फिर राइट रिटर्न नहीं भरे तो भी गवर्नमेंट को उनका पैसा टाइम पे मिल जाए. That was the reason of bringing this according to me. So clarification is also required in the scenario in case that deductee obtain a lower or nil rate of TDS certificate from jurisdiction officer. ये कहीं क्लेरिफाई नहीं किया हुआ. अगर इसी केस है तो क्या स्टेप्स लेने, बिकॉज इन दैट केस ऑटोमेटिकली वो 50,000 के नीचे आ जाता है. बट एट द सेम टाइम इस कैटेगरी में वही पर्सन होगा जो रिटर्न फाइल करता है. सो अगेन वी कैन अज्यूम दैट ये कंडीशन वहां नहीं जाएगी. What is the objective? So far now it is difficult to understand the motive behind insertion of TDS and TCS on purchase and sale of goods, because 50 लाख के ऊपर टीडीएस और टीसीएस का जो ट्रांजैक्शन है वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, एबनॉर्मल नहीं हो सकता है, बिकॉज ये जो है सारे पैन नंबर उनके होता है, जीएसटी नंबर उनके होता है, तो ऑलरेडी वो कंप्लाई करते हैं लॉ के अंदर.
So I don't know, otherwise अगर TDS से ज्यादा एक्स्ट्रा कलेक्शन होगा, इनकम तो रिटर्न भरते ही है, उसके बाद उनको रिफंड लेना पड़ेगा, तो ये कंबरसम फॉर्मेलिटी है, कंबरसम एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, ओके, बट करनी जरूरी है. फंक्शनैलिटी टू चेक द स्पेसिफाइड पर्सन. As per latest circular number 11, CBDT has issued circular to know about the specified persons category. और बहुत अच्छा पोर्टल बनाया उन्होंने, थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी लॉगिन करने के लिए, बट वंस दिस हैड बीन फंक्शनलिटी इज इन प्लेस, you will easily come to know कि हाँ कौन सा पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन लिस्ट में आ रहा है, then you can decide accordingly and charge rate. So now we are moving. Vijendra bhai, we have time, sir? Yes, sir, no problem. Okay. 5-10 minutes. 5 minutes you can take more. We'll then we'll take a question answer also. Yes, yes. So Rohit ji भी हमारे हैं valuation के ऊपर, so I will take care of that also. So now I'll quickly go through the presentation where I have mentioned the functionality, how to use the functionality of to know about the specified person. Compliance check for section 206 and the functionality to verify the specified person. Login into income tax site. You have to log in with your TAN, not your PAN. So be careful. You have to go with the TAN. Once you go with that, if you already have the traces ka PAN and TAN register, so you can use that also. After using that, you will come to a portal like this way. report.inside.gov. Reporting portal है ये. यहाँ पे new registration आपको continue करने बोलेगा. You have to continue with the new registration. After that, you will have to select the compliance check and tax deductor. That options were drop down menu आएगा वहाँ पे. Then you have to go continue. Now here is the detail you have to put for the entity. report.inside.gov ये पोर्टल है जहाँ पे रिपोर्टिंग पोर्टल है. ट्रेसेस से लॉगिन करने के बाद में आपको इस पोर्टल पे लेके आएंगे. वो वहां पे आपको आपका एंटिटी का डिटेल डालना है. You have to enter an entity. If you are having group of companies like 10-12 companies आपकी है, तो आपको individual entity का यहाँ डिटेल डालना है. After that, once you completed that window, you will come to next window where you have to give the details of principal officer. Who is the principal officer of that particular company? You have to give all that data here. Basically very normal data, KYC types के data है. Address, brand number, mobile and email address is very important because OTP आता है वहाँ पे mobile और email पे. So make sure that you put the correct mobile number and email address. After that, you will give the preview and submit button. You can check that if the report is the data you have entered is correct. You can click the submit button. Accessing the functionality report by principal officer. Once you are registered, now you are allowed to access the reporting portal by a principal officer. Please see, this is a condition. Only principal officer. Like why principal officer means principal officer जिसका हमने पैन नंबर दिया वो पैन नंबर से लॉगिन होगा और वही पासवर्ड हमें यूज करना पड़ेगा. Everybody can log in, but with the principal's PAN number. So report.inside.gov portal है, वहां पे आपको जाना है. Once you logged into, you will get this window, reporting portal. Now you can click reporting portal. On clicking reporting portal, you can have option to log in. Once you have logged in, once you have put your details, PAN number of the principal officer and the password. After you log in, you will reconfirm the password and everything. After that, you have the option here, form type and ID, ITD-REN. So you have to select this. After selecting, the compliance check for section 206 AB and CCA will come. You have to click here. Then you have to enter the PAN number here and the CAPTCHA, and then you can come to know the person's category, whether he is a specified person or not. There is an option of bulk search also. You can upload the file of all your PAN number if you're having more than 100 or more than thousands of, like बड़ी कंपनियों में होते हैं बहुत सारे इनके. So you have the option search. यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करनी है. Vijay bhai, if you allow me, I can share the real time this thing. Yeah, you can. Yeah, please. You can see the screen now. Yes, yes. It's important because. See, now I'll do login live. Password.
Just a minute. Sorry. संदीप जी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है, आई बिलीव कुछ एक रिपोर्टिंग second. पोर्टल दिख रहा है, रिपोर्टिंग पोर्टल second. 91966 वाला नंबर कैप्चा Screen change नहीं हुआ. You have to change that sharing of that again. Just a minute, I'm doing that. अरे वाह. Okay. Yes sir, please. Now it is visible. Yeah. Compliance check आया. Yes. See, this is a compliance check. This is the item what generated by the system. So authorization type principal officer. You have to click principal officer. Now proceed. So this window will come. Now you have the option to check compliances for 206 AB and CCA. So you have to put. I'll just random number here. No, it's not random number, but it's relatives number. So I'll put some PAN here with the CAPTCHA. Now you will come to know. So there's a very simple process. Department has done. नाम यहाँ पे आ जाता है, PAN allotment है, PAN number है, and specified person under section 206 AB है या नहीं है? नहीं है. So normal you have to follow the normal. अगर है तो you have to check accordingly कि higher rate में कौन सा rate है. Now you can download this and keep on your record. You can download this. Reference. For reference, you can see this. So it's a very simple process they have done. So fantastically done there. Rather than opting in declaration for each and every one, now they have done fantastic job for this modularity. Just a minute, I'll share again that presentation. Sorry. I'm not able to get, sorry. Screen sharing option, advanced sharing option. आ नहीं रहा स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शंस वापस. आप संदीप जी को तो है वैसे. आप ये दिख रहे स्क्रीन अभी? नहीं. So just a minute. Okay. There we are. Okay, so now we have this. I think I have done as per the time allotted to me. I have done what possible for me, what possible I can do for you. So this is from me, my sides. In learning, you will teach. Sorry. In learning, you will teach, and in teaching, you will learn. By Phil Collins. So जब आप पढ़ते हो तो आप सिखाते हो, और जब सीखते हो तो आप सिखाते हो. And this is what I can say for this. This was actually my first ever session webinar on any topic. Thank you so much for your patience hearing, patientful hearing. Thank you so much. Please pardon me if I done anything which is not up to your mark. Vijendra, we can take question mark if you allow. Yes. Daya, please take the questions. Unmute yourself and fastly take the questions. And Sandeep bhai, you are fantastic, and please bear with us till last because your motivation required to us to our second learned speaker Rohit ji. And very well explained. The provision is very easily understandable to everybody.
सर आपने बहुत शुद्ध भाषा में समझाया कि एक व्यापारी को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या क्या ध्यान रखना है. दया, over to you. Please take the Yes, question. yes. Thank you, Vijender bhai. Daya, you can take na. You can read it na. Yes, yes. Hello, hello. Yeah, you are audible, please. There is some problem in my screen. Just wait. Huh? Meanwhile, Yes. Sandeep ji, I will ask the one questions. Yes, There is a lot of people are asking the declaration instead of verifying. Whether you can tell them that whether you should verify instead of taking a declaration, or what's our stand should be. सॉरी, डिक्लेरेशन की अभी फिलहाल मोटा मोटी जरूरत नहीं है. डिपार्टमेंट ने भी क्लियर कर दिया कि डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है. नाउ यू कैन चेक इन योर ओन बाय यूजिंग दिस फंक्शनैलिटी. पता है, उसमें लॉग इन करके आप जाके चेक कर सकते हो उसके अंदर. जब आपको पता ही है कि वो पर्सन सी द डिक्लेरेशन क्यों रिक्वायर था कि वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. हम तो नो कि भाई वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में है ही नहीं वो पर्सन, तो व्हाई वी हैव टू because in the declaration they are asking that copy of return those things. Why we should share those things? Actually it was most of the companies were asking earlier also, because क्या हुआ था, ये 21 जून को आया नोटिफिकेशन, और जितने भी आप देखोगे ना वो सब आपके 21 जून के पहले ही आएंगे. तो अभी वो आगे ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो गई है. विवेक जी आप ले लीजिए क्वेश्चन, अगर कोई मेंबर्स की क्वेश्चन है या मेंबर्स I have one question, Sandeep. Sandeep, I have one question. Yes. Sandeep, many customers are taking declaration under section 194Q from their customers. Yes. Yes, from their customers. That from now onwards you don't charge TCS, we will be deducting TDS. Correct है. So is that okay? Yeah, we have to take declaration. जैसा कि मैंने बताया प्रेजेंटेशन के अंदर भी, अगर परचेजर और सेलर दोनों का 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, आपस में परचेज सेल 50 लाख के ऊपर है, तो टीडीएस प्रिवेल्स द टीसीएस. करेक्ट. यस, तो टीडीएस डिडक्ट करना है, टीसीएस नहीं चार्ज होगा. आपको उन्हें मना करना है, लेटर लिख के, या भी जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है उनको बताना है कि भाई हमारा भी 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, हमारा भी आपसे 50 लाख के ऊपर परचेज है, तो हम अभी टीडीएस काटेंगे, आपको अभी टीसीएस चार्ज नहीं करना है हमारे ये ट्रांजैक्शन के ऊपर. और टीडीएस अकॉर्डिंग टू मी जो काटना है वो बिफोर जीएसटी वैल्यू पे काटना है, बिकॉज नॉर्मली अपन सारे टीडीएस बिफोर जीएसटी वैल्यू पे काटते हैं. करेक्ट सर. एक साधना जी का क्वेश्चन है, संदीप जी क्या क्वेश्चन है? इज देयर ए परचेज रिटर्न, देन हाउ टीडीएस 194Q टू बी ट्रीटेड? वेरी गुड क्वेश्चन. बिकॉज परचेज के ऊपर ही मेंशन किया उन्होंने, परचेज रिटर्न का तो कोई है ही नहीं, बिकॉज वो जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है उसके ऊपर ऑलरेडी टीडीएस तो कट ही चुका है पूरा का पूरा. अब उसको नेट ऑफ करना है नहीं करना है वो एक्चुअली रियल में कोई बड़ा क्वेश्चन है. बट अकॉर्डिंग टू मी परचेज जब किया था टीडीएस काट दिया, उसके बाद में कुछ आपका क्रेडिट नोट आता है, डेबिट नोट आता है, तो उसके ऊपर अभी कोई करेक्ट व्यू आया नहीं है डिपार्टमेंट से. अदरवाइज भी क्या होता था, अदरवाइज भी जो आप कोई चीज सर्विस देते थे तो पहले जब क्रेडिट करते हो तभी आप टीडीएस काट लेते हो. अब उसके बाद में कोई डिस्प्यूट आता है, कोई चीजें रिटर्न जाती है, तो टीडीएस तो रिफंड होता नहीं वापस, तो रिवर्स तो करते नहीं, वो माइनस में तो कोई चीज होती नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू मी वो मतलब उस ट्रांजेक्शन को उससे अलग ही रखना पड़ेगा. ओके, जोसेफ जी पूछ रहे हैं कि टिल लास्ट ईयर द पेमेंट मेड टू डेवलपर ऑन पार्ट ऑफ पेमेंट वाज 0.75%. इज देयर एनी चेंज फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर सर? यस ऑफ कोर्स इट वाज. सी वो स्पेसिफिकली डिस्काउंट दिया हुआ था मई 2020 ऑनवर्ड्स, 25% रिडक्शन इन टीडीएस रेट, ब्लैंकेट 25% डिस्काउंट दिया हुआ था उसके ऊपर, टीडीएस रेट के ऊपर. सो दैट हैज बीन टेकन अवे, एंड फ्रॉम नाउ 1st April 2021 normal TDS rate prevails for this particular purchase transaction. 0.1% has to be deducted. Perfect. And member Sandeep sir. Yes, Daya ji boliye. Sandeep sir, one question person is asking that suppose the composition dealer, so he is not mentioning the GST bifurcation in the bills. So what's the TDS rate will be applicable to on this directly? TDS rate is the same. TDS rate is 0.1% for the purchase of goods.
हाँ, just take care for the question may be like for purchase value to be determined. Which purchase, how much is the purchase value to be determined in case where there is no separate GST is charged. But in this case, अगर वो composition dealer है तो हमें purchase value पूरी रहती है हमारे लिए, हमको उसको GST को separate लेके जाते नहीं है. So in that case 50 लाख पूरा अगर जिस दिन हो जाएगा वो पूरी purchase के अंदर, तो उसके बाद में 0.1% चार्ज करना पड़ेगा. वेल मेंबर्स, वैसे संदीप भाई एक आर्टिकल लेके आ रहे हैं हमारी ब्रांच में और WRC इसी टॉपिक पे जल्दी, तो अगर किसी को क्लैरिटी भी चाहिएगा तो उसको हम पढ़ के हमारी क्लैरिटी ले सकते हैं. तो विद दिस थैंक यू ईच एंड एवरीवन, बिकॉज ये टॉपिक अभी नया है सब लोगों के लिए. काफी क्वेश्चंस और आएंगे जब हम प्रैक्टिकलिटी करेंगे. एंड हम संदीप जी को अभी विदा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम वोट ऑफ थैंक्स अभी नहीं दे रहे हैं. संदीप जी हमारे साथ है क्योंकि ये हमारा घर का परिवार है, ये प्लेटफॉर्म हमारा घर का है, तो हम इस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पीकर को भी. तो विवेक जी आगे प्रोसेस करिए प्लीज. Thanks, Thank you. Sandeep ji. Now I'll invite Rohit ji Khandelwal ji to give the next sessions. And great round of applause for the first speaker of the Yeah, session. that's very true. That's no doubt about that. Thank you so much everyone for your lovable and very thank you all to wonderful participants. Thank you so much. रोहित जी स्टार्ट करिए सेशन. संदीप जी के लिए भी थोड़ा सा फीडबैक आपका, बिकॉज इस टॉपिक में आपने भी बोला हुआ है. विद दिस ओवर टू यू रोहित जी. Thank you so much, Vivek Jain sir. Thank you so much the organization for giving me this wonderful opportunity to interact with the members and professionals of Mumbai. Thank you so much to the organization organizers. Thank you so much Hema Bansal ma'am for your kind words and a wonderful explanation about me, about my qualifications. Thank you. Thanks a lot to our charter president, my big brother, one of my very good friend, one of my senior, whom I always admire. So very hardworking and very charming personality, Vijayendra Jain sir. Thank you so much for this opportunity. To all the seniors and all the friends present over here, a very good evening to all of you. I will start my presentation on the valuation of securities or financial assets. Right together. First of all, I would like to draw your kind attention with this topic. We are not talking about the valuation of each and everything in this particular era. When we talk about valuation, when we chartered accountants or company secretaries or cost accountants talk about this particular topic valuation, then this valuation is restricted to the category which technically belong to us, and that is the valuation of securities or financial assets. Because nowadays एक टाइम था जब valuation का मतलब केवल लोग जानते थे that this is related to the chartered engineers. Because we think that the valuation of land, building, plant equipments are much more necessary in each and every aspect, especially with respect to the banking sector. But when we talk about valuation of securities or financial asset, this is one of the new thing, and not exactly new, but yes, this is one of the new era coming to the our profession, valuation of securities or financial asset. Let me draw your kind attention to this particular fact that valuation is not restricted to a particular law now. Now there are certain laws like Companies Act 2013 as well as Insolvency and Bankruptcy Code 2016, which in which they talk only about valuation from registered valuer. So there is a new profession coming in our country, that is registered valuer. One more thing which I need to mention here, in almost each and every developed country, valuation is a separate profession. But as far as India is concerned, right now we are not having a separate profession like valuation, but coming days we will see a separate profession which belongs to only valuation. The bill of valuation is already tabled in the parliament. We are waiting that how it can be approved from the parliament, and once it get approved, then valuation will certainly become the separate profession in India also. So in this my session, I would like to discuss about Companies Act specifically, because the time is not much with me, and the so till that time the organizer will allow me to extend my session. I will definitely try my best. So I would start with this particular point. Generally हम जब valuation पर session करना चाहते हैं तो members यही agree भी करते हैं, और members की यही expectations होती है that we should cover Companies Act
Income Tax Act as well as Insolvency and Bankruptcy Code. But in this limited time, I would try my best to cover the valuation required under Companies Act as well as the various rules of companies rules. So first of all, we should talk about the profession, the name of the profession, registered valuer. क्योंकि 2013 Companies Act 2013 और स्पेशली सेक्शन 247 ऑफ द कंपनीज एक्ट के पहले किसी ने नहीं सोचा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी कभी वैल्यूअर कहा जाएगा. अल्दो इन FEMA as well as in Income Tax Act कभी कभी कहा जाता था कि certain type of valuation can be undertaken, valuation exercise can be undertaken by the chartered accountant simultaneously with the merchant bankers. But कभी किसी ने नहीं सोचा था इस सेक्शन के पहले कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी वैल्यूअर कहा जाएगा. बट सेक्शन 247 ऑफ कंपनीज एक्ट मेड इट पॉसिबल कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहा जाने लगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कंपनी सेक्रेटरीज को कहा जाने लगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन द प्रेजेंस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन. सो जब वेलकमिंग सेक्शन जो था वो था सेक्शन 247 कंपनीज एक्ट 2013 और फिर उसी के साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में भी कुछ सेक्शंस लाए गए जहां कहा गया कि वैल्यूएशन शुड बी अंडरटेकन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ओनली. व्हाट डज सेक्शन 247 सेज? सेक्शन 247 कहता है कि कंपनीज एक्ट और कंपनीज रूल्स के अंडर में अगर कभी भी किसी भी असेट का, किसी भी लाइबिलिटी का, किसी भी सिक्योरिटी लाइक शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड या किसी भी तरह से नेटवर्थ का आपको वैल्यूएशन करवाना है तो दैट एक्सरसाइज कैन बी अंडरटेकन ओनली बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हु आर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर. तो ये एक बहुत बड़ी नई अपॉर्चुनिटी भी है यंगर मेंबर्स के लिए. स्पेशली मैं कहना चाहूंगा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यंगर मेंबर्स कई बार देखते रहते हैं कि कौन सी ऐसी नई चीज आए जहां हम भी सीनियर्स के पार आकर शायद खड़े हो पाए, जहां ऐसी चीज आए जो सीनियर्स के लिए भी जो नई चीज हो. तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा ये यंगर मेंबर्स के लिए बहुत ही एक इनिशियल और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. यंगर मेंबर नॉट एग्जैक्टली यंगर, एटलीस्ट जिन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस हो CA या CS बनने के बाद. तो एक नई चीज है. सेक्शन 247 कहता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आपको वैल्यूएशन करवाना है, लेकिन हमें अब समझना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर 3 तरह के होते हैं. रजिस्टर्ड वैल्यूअर हमें समझना होगा 3 तरह के हैं. तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं क्योंकि ये हमारे मन में भी क्वेश्चन आता है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर हम कैसे हो सकते हैं. रोहित, हाउ कैन यू वैल्यू द लैंड एंड बिल्डिंग? बताओ, आप बताओ रोहित, कैसे वैल्यू करोगे लैंड और बिल्डिंग को? एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एक चीज आपके सामने रखनी होगी. जब कंपनीज एक्ट ने भी कहा कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही वैल्यूएशन करेंगे, उस समय एक बड़ा क्वेश्चन था, हु विल रेगुलेट दिस प्रोफेशन? तो आंसर बहुत सिंपल है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज रेगुलेटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन. फिर आगे बात हुई कि वैल्यूअर्स कितने तरह के होंगे, तो उन्होंने कहा कि वैल्यूअर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. पहली कैटेगरी उन्होंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग, सेकंड कैटेगरी कहा प्लांट एंड इक्विपमेंट और थर्ड कैटेगरी कहा व्हिच बिलोंग टू अस, दैट इज सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल असेट्स. टेक्निकली लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट को अगर आप छोड़ दें तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉल अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी व्हिच बिलोंग टू अस, एसएफए कैटेगरी. शॉर्ट में हम इसे एसएफए कहते हैं. लाइक वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, नॉट टेक्निकल. अगर मैं बात करूं कि अब स्टॉक्स में भी तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जहां इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां अभी भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. बट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, वैल्यूएशन ऑफ नेटवर्थ कैन बी अंडरटेकन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑफ एसएफए कैटेगरी. तो आईबीबीआई ने फिर जब रूल्स बनाए तो कहा कि वैल्यूअर 3 कैटेगरी में होंगे. ये 2 कैटेगरी जो स्टार्टिंग की है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, ये केवल इंजीनियर्स के लिए है. CA और अगर CS और CWA के लिए हम बात करें तो एसएफए कैटेगरीज ओपन. मैं जब भी वैल्यूएशन पर सेशन लेता हूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बात के होते हैं that how can we become a registered valuer? There is a process prescribed by the rules, there is process prescribed by the Insolvency and Bankruptcy Board of India, and how can we one person become a registered valuer under these rules? So there is a specific process. मैं उसे भी बहुत brief में discuss कर लेता हूं with the permission of the organizers. वैल्यूअर बनने के लिए वो कहते हैं एक सिंपल सी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए. यू नीड टू बी अ CA, CS और CMA. Post qualification experience should be 3 years, but the person should be in practice only. At the time when you are applying to become the registered valuer, you should be in practice. So there are certain registered valuer organizations in our country right now. As far as it is concerned, 13 registered valuer organizations are there. जो जिन्हें IBBI ने कहा, क्वेश्चन ये था कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर को ट्रेन कौन करेगा? हु विल ट्रेन द वैल्यूअर्स, हु विल रेगुलेट द ट्रेनर्स, हु विल मेक द स्टैंडर्ड्स फॉर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स? तो आरबीआई ने कहा दिस थिंग विल बी डन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन.
There are around 13 registered valuer organizations in our country. Our proud institute ICAI RVO is also one of the RVO in the country and very leading RVO in the country as of now. So हमें सबसे पहले एक RVO के पास अप्लाई करना होता है प्राइमरी मेंबरशिप लेने के लिए. प्राइमरी मेंबरशिप देते वक्त वो हमारी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं. आफ्टर दिस प्राइमरी मेंबरशिप you need to undergo a particular training which is of 50 hours. हमें 50 घंटों की एक ट्रेनिंग लेनी होती है. RVO अब तो सब RVO ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल करवा रहे हैं वीकली बेसिस पर. You need to undergo this particular 50 hours training जहां पर generally they discuss about the syllabus of the registered valuer examination. When you complete your training, you need to self study because syllabus no doubt थोड़ा सा vast है और थोड़ा सा बहुत ज्यादा technical syllabus है. It somehow belong to financial management more. So after your study, you can appear for the examination. Examination जो होगा वो online ही है, but you need to go to the center of NSE. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो एग्जामिनेशन सेंटर है, आपको NISM की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, so that you can appear in the exam. सेंटर पर आपको जाना होता है. यही सबसे बड़ी लड़ाई है. 100 मार्क्स का एग्जाम है, बड़ा सा सिलेबस है और 60 मार्क्स होते हैं पासिंग और विद नेगेटिव मार्किंग. ये बड़ी एक फाइट है. So after you pass this exam, you need to apply to the IBBI for your registration as a registered valuer. When you get the membership from the IBBI, फिर RVO आपकी एक और ट्रेनिंग अरेंज करेगा, that is COP training. So how to undertake the assignment of the valuation. और उसके बाद फिर जब आपको COP मिल जाती है, you can practice as a registered valuer. Now there is one more doubt of the members. क्या मेरे पास CA की COP है? Can I simultaneously hold the COP of the registered valuer also? Yes. As of now, if you are having the COP of chartered accountant, you can hold the COP of registered valuer as well. So simultaneously 2 COP can be held by you as of now. But yes, as and when the registered valuer will get पास, हमें ऐसा लगता है कि उसके बाद ये 2 COP अलाउ नहीं की जाएंगी. So as of now you can be in practice of both as a chartered accountant as well as the practice of registered valuer. Now let me back to my topic. Under which rules and under what sections registered valuer is required? Valuation is required from the registered valuer. मैं केवल हमारी कैटेगरी की ही जनरली बात अभी करूंगा सर. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ सेक्शन 54 रेट विद रूल 8 ऑफ कंपनीज रूल 2014 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर. एक पॉइंट आता है स्वेड इक्विटी शेयर्स. व्हेन वी इश्यू द शेयर्स टू अवर एम्प्लॉय जिन्होंने हमारे लिए कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करके हमें दिया है, वी इश्यू शेयर्स टू देम एज अ रिवॉर्ड. वो कभी कभी डिस्काउंट्स पर भी इश्यू होते हैं, कभी कभी फ्री में भी इश्यू होते हैं. तो स्वेड इक्विटी शेयर्स के केस में आपको शेयर्स का वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाना ही होगा. एक और मेंबर्स का डाउट अभी आता है क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है अप टू दिस प्रोफेशन. अवेयरनेस बहुत कम है. तो मेरे कई सीनियर्स, कई कुलीग अभी भी क्वेश्चन पूछते हैं, कई फ्रेंड्स अभी भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने तो एक कंपनी का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अभी किया था, नए शेयर होल्डर्स को वी मेड एन इश्यू एंड व्हेन वी फाइल द रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर अलॉटमेंट टू द ROC, हमने उसके साथ वैल्यूअर की रिपोर्ट अटैच नहीं की है और हमारा तो वो अप्रूव भी हो गया है. सो बाय द रिपोर्ट फ्रॉम द वैल्यूअर इज रिक्वायर्ड. सर अभी अवेयरनेस नहीं है, ROC भी कुछ केसेस में इग्नोर कर रहे हैं, बट लेट मी put a fact before you. अब ROCs ने कंसर्न करना स्टार्ट कर दिया है. वो जैसे ही आप रिटर्न अलॉटमेंट फॉर्म फाइल करेंगे, शेयर्स अलॉटमेंट का फॉर्म फाइल करेंगे, ROC क्वेरी रेज कर देगा that it should be supported by a report of the valuer. तो अब ऐसा नहीं चल रहा है और डेफिनेटली अब तो STP फॉर्म भी MCA 3.0 आने के बाद एक्सपेक्टेड है कि स्क्रूटनाइज होंगे. तो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल शुड नॉट टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क व्हाइल सर्टिफाइंग दिस टाइप ऑफ रिटर्न. आपको रूल्स यहाँ पर समझने होंगे कि जब भी आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करें, आप देख लें कि शेयर्स जो अलॉट किए हैं वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन किए हैं और आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के साथ में वैल्यूअर की रिपोर्ट अटैच कर दी है. एज फार एज स्वेड इक्विटी शेयर्स आर कंसर्न, हमें 2 वैल्यूएशन करवाने होंगे सर. एक तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो आपके एम्प्लॉइज ने क्रिएट करके आपको दी है और एक वो शेयर्स का जो आप बदले में एम्प्लॉइज को इश्यू कर रहे हो एज अ रिवॉर्ड. सो यहाँ पर 2 वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होंगे. वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी कि कितने अमाउंट का आपको इश्यू करना है इक्विटी शेयर, और वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स भी आपको लेना होगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स. मैं आपको फिर एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ भी बहुत सारे मिथ भी हैं, डाउट्स भी हैं.
For the purpose of income tax, registered valuers are not authorized to undertake the valuation assignment. वहां अभी भी रूल 11 और उसके बहुत से सब रूल्स अगर सर आप पढ़ेंगे तो either it can be undertaken by a chartered accountant or can be a merchant banker. वो भी बहुत समराइज्ड है. If it is to be taken by the book value method तो CA भी कर सकता है. बट अगर आपको DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड एम्प्लॉय करनी है तो इट कैन बी अंडरटेकन ओनली एंड ओनली बाय अ मर्चेंट बैंकर. अल्दो मेरे कुछ क्लाइंट के केस में हमने अभी प्राइवेट प्लेसमेंट जो किए हैं सेक्शन 5627B जहां पर अट्रैक्ट हो रहा था फेस वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर हमने शेयर्स इशू किए. वहां पर कुछ असेसिंग ऑफिसर्स ने रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट को भी अग्री किया, अडॉप्ट किया, ये मानते हुए कि अब तो दूसरे रेगुलेटर्स भी इसे अडॉप्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन इन अडॉप्टिंग इट. बस according to statute, according to the act, we are not authorized. As of now, we are not authorized. Finger crossed, हम expect कर रहे हैं कि FEMA, SEBI regulation, as well as Income Tax Act में भी बहुत जल्द वैल्यूअर के लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाला प्रोफेशन रिप्लेस कर दिया जाएगा. अल्दो एक गुड न्यूज अभी आई थी, इनकम टैक्स रूल्स रूल नंबर 11 में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जो अभी उन्होंने रूल अमेंड किया है CBDT ने, वहां उन्होंने रजिस्टर्ड वैल्यूअर कंपलसरी कर दिया है. तो एक्सपेक्टेशन है कि या तो डायरेक्ट टैक्स कोड या जब भी रूल अमेंड होंगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर विल फाइंड इट प्लेस इन द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स आल्सो. पर अभी हम बातें ही सुन रहे हैं बहुत टाइम से. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रैक्टिस, कंपनी लॉ में सबसे ज्यादा जरूरत एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि उनकी एक कंपनी है, नए शेयर्स इशू करने हैं, क्या वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है. इसका मैं आंसर 1 बाय 1 सेक्शन के थ्रू दे ही रहा हूं, बट अगर आप मुझसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहते हैं तो सर उसका इतना सा केवल आंसर है, एक्सेप्ट राइट इशू आप मानकर चलिए वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड. एक्सेप्ट राइट इशू, आप किसी भी तरह से शेयर्स इशू कर रहे हैं मानकर चलिए वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड. अल्दो मैं बहुत स्पेसिफिकली सारे सेक्शंस अभी यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर, वैल्यूएशन इज यस कंपल्सरीली रिक्वायर्ड. When we issue shares to our existing shareholders in their proportion to their existing shareholding, तब सर उसे हम राइट इशू कहते हैं. कुछ सीनियर्स का भी ऐसा आर्गुमेंट आता है कि रोहित हम शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही तो इशू कर रहे हैं, तो इट शुड बी राइट इशू, नॉट दिस शुड बी द पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल इशू. सर वहां पर दो कंडीशन होती है. किसी भी इशू को आप प्रेफरेंशियल इशू तभी कह सकते हो जब आप दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर पा रहे हो. कंडीशन नंबर 1 वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को है, और कंडीशन नंबर 2 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है उसी प्रोपोर्शन में आप इशू कर रहे हो. अगर आपके दो शेयर होल्डर हैं A एंड B, दोनों 50-50% शेयर होल्डिंग अभी रखते हैं और आप नया इशू ला रहे हो जिसमें A को 30% शेयर इशू करोगे, B को 70% इशू करोगे, सर ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं है और ये राइट इशू नहीं है, सॉरी, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा एंड यू नीड टू टेक द वैल्यूएशन असाइनमेंट. आपको करवाना होगा वैल्यूएशन, दैट टू फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर. Now, right issue valuation is not required, but as far as income tax is concerned, जब renunciate करते हैं शेयर होल्डर्स राइट को तब ये रिकमेंडेटरी होता है. रिकमेंडेशन हमारी होती है कि वैल्यूएशन आप करवा लें, बट वो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स. नाउ अगर हम शेयर्स के अगेंस्ट में कोई कैश कंसिडरेशन रिसीव नहीं कर रहे हैं, in lieu of equity shares we are receiving certain type of properties from the prospective shareholders, then rule कहता है कि आपको उस particular property का valuation करवा लेना चाहिए जो consideration आपको non cash consideration आपको receive हो रहा है. What about ESOP? I will discuss it later. As far as ESOP is concerned, I will discuss it later. अभी कुछ senior members का regularly जो मुझे doubt आता है वो ये आता है कि whether एक listed company अगर preferential issue ला रही है तो क्या उसे वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होगा फ्रॉम यू पीपल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होगा. सो आई होप बहुत से सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, मेरी रिक्वेस्ट भी है सभी सीनियर्स से, सभी फ्रेंड्स से कि आप सभी जीएसटी, इनकम टैक्स, इंड एस के एक्सपर्ट्स हैं. आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ ऑल दिस फील्ड बिकॉज़ आई एम प्रैक्टिसिंग द वैल्यूएशन. तो व्हेनेवर यू फील कि मुझे कुछ इनपुट्स आपको देने हैं, आप जब भी चाहें प्लीज प्रोवाइड योर इनपुट सो दैट आई कैन लर्न फ्रॉम यू. तो वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में अगर आपके कुछ इनपुट्स हैं प्लीज शेयर इट विद मी, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड. So as far as preferential issue of listed company is concerned, सर वहां पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन रिक्वायर्ड नहीं है. कुछ 4-5 दिन पहले एक स्ट्रेंथ सा केस लो आ गया है, अभी मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं, बट एज फार एज रूल्स आर कंसर्न नो रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर. वैल्यूएशन रिक्वायर्ड नहीं है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, क्योंकि ऑलरेडी वहां आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल है और आईसीडीआर रेगुलेशन में देयर इज अ मैकेनिज्म कि अगर एक लिस्टेड कंपनी प्रेफरेंशियल इशू लेकर आती है तो लास्ट 26 वीक्स और लास्ट 2 वीक्स का वीकली वेटेड प्राइस का एवरेज लेकर, वीकली हाई और लो का एवरेज लेकर आपको करवाना होता है शेयर्स इशू.
तो वहां मैकेनिज्म है, लास्ट 26 वीक के हाई और लो का एवरेज, लास्ट 2 वीक के हाई और लो का एवरेज, विच एवर इज हायर से कंपेयर आप प्रेफरेंशियल इशू नहीं ला सकते अकॉर्डिंग टू द ICDR 2018। वहां पर केवल एक काम होता है कि वो कंपनीज चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि 26 वीक का एवरेज ये है, 2 वीक का एवरेज ये है, सो दैट वो सपोर्ट कर पाए, ये प्रूव कर पाए कि हमने सही वैल्यू पर शेयर्स इशू किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस नो वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। नाउ as far as convertible securities are concerned, कुछ लोगों को डाउट यहाँ बहुत आता है, हम तो डिबेंचर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, हम तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। वो कन्वर्टिबल ऑप्शनली भी हो सकते हैं, कंपल्सरी भी हो सकते हैं। सर मैंने चारों नाम यहाँ पे लिख दिए और क्लियरली आपको बता रहा हूँ, वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। as far as the rules are concerned of the company's rules, इन चारों सिचुएशन में रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होगा। नाउ देयर इज अ बिग डाउट, एक बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन है कि शेयर्स हम बदले में इशू करेंगे, जब हम कन्वर्ट करेंगे डिबेंचर्स को इक्विटी में, तब डेफिनेटली हमें कन्वर्जन रेशियो डिसाइड करना होता है कि इंस्टेड ऑफ 1 शेयर हम आपको इन प्लेस ऑफ 1 डिबेंचर हम आपको 2 इक्विटी शेयर देंगे। तो हम कहते हैं 2:1 का कन्वर्जन रेशियो हमने डिसाइड किया। रेगुलेटर अब आपसे कह रहा है कि कैसे आपने कन्वर्जन रेशियो डिसाइड किया, तो आपको प्रूव करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ योर इक्विटी शेयर। नाउ हाउ विल यू प्रूव योर वैल्यू? डेफिनेटली आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाना होगा। अब डाउट ये है, डिबेंचर इशू कर रहा हूं तब वैल्यूएशन करवाऊं या डिबेंचर कन्वर्ट कर रहा हूं तब वैल्यूएशन करवाऊं? सर आपको तब वैल्यूएशन करवाना है जब आप ये कन्वर्जन रेशियो डिसाइड कर रहे हैं। जनरली दिस रेशियो इज डिसाइडेड अप फ्रंट एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ योर सिक्योरिटीज। आप टर्म शीट में ये लिख देते हो, तो सर अगर ये अप फ्रंट डिसाइडेड है तो आप पहले ही वैल्यूएशन करवा लें, बट इफ कन्वर्जन रेशियो इज टू बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, तो आपको वैल्यूएशन उसी वक्त फिर करवाना होगा। Now, share based payment to employee, जो मैंने ESOP वहां पर इग्नोर किया था, it was intentional, क्योंकि यहाँ मैं अब आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ what is valuation with respect to share based payment to employees. जनरली हम इसे कह देते हैं ESOP, बट ये टेक्निकली ESOP नहीं बचा है। यहाँ बहुत सारी चीजें हमें समझनी होंगी। कुछ टाइम पीरियड से एक नई चीज अब हमारे प्रोविजंस में आ गई है, कंपनीज एक्ट और सेबी रेगुलेशंस में, कि अब हम केवल ESOP को नहीं काउंट करते हैं। अब ESOP इज वन ऑफ द थिंग हो गया है। कंपनी जब अपने शेयर होल्डर अपने एम्प्लॉइज को ऑफर देती है कि आपके लिए हम ये स्कीम लेकर आ रहे हैं, इफ यू वांट यू कैन पार्टिसिपेट इन द स्कीम एंड जस्ट टेक द शेयर्स फ्रॉम द कंपनी, हम उसे कहते हैं एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम। जब हम ऑप्शन केवल एम्प्लॉइज को दे रहे हैं। जब हम किसी प्राइवेट प्लेसमेंट या किसी पब्लिक ऑफर के पार्ट के फॉर्म में एम्प्लॉइज को शेयर इशू करते हैं, तब हम उसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम। जब हम एम्प्लॉइज को ऑप्शन देते हैं कि फ्यूचर में आप शेयर 50 रुपीज पर अक्वायर कर लेना, और फ्यूचर में अगर एक इक्विटी शेयर की रेट 150 हो जाती है, तो आप शेयर्स मत लेना, आप 100 रुपीज ले लेना। कई एम्प्लॉइज केवल इस चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं दैट वी वांट टू कवर द गेन ओनली, हम केवल गेन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी स्कीम में। तो वो गेन की स्कीम को कहा जाता है शेयर स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, SAR, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। जब आप जनरल बेनिफिट्स के लिए एम्प्लॉइज के लिए स्कीम बनाते हो, तब हम उसे जनरल बेनिफिट स्कीम कहते हैं। और एक लास्ट स्कीम होती है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम फॉर द एम्प्लॉइज, जब आप शेयर्स इशू करते हो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ योर एम्प्लॉइज। इन सभी को सर आज की डेट में कहा जाता है शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज, शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज। Now, as far as share-based payments are concerned, we are having 2 routes. Regulator has provided us 2 routes. Generally, companies trust route से जाना पसंद करती हैं। Trust route means जहां हम एक ESOP trust सर फॉर्म करते हैं। बहुत सारे सीनियर्स यहाँ पर हैं, आपने कई बार ये काम किया होगा सर। कंपनी ESOP का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेट एंटिटी को ट्रांसफर कर देती है, असाइन कर देती है, उसे हम कहते हैं ESOP ट्रस्ट। और एक होता है सर जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी खुद करना चाहती है, वी कॉल इट डायरेक्ट रूट। So we are having 2 routes, trust route as well as direct route. As far as trust route is concerned, valuation is required, but as far as direct route is concerned, rules में कहीं नहीं लिखा है कि आपको वैल्यूअर से वैल्यू करवाना होगा। क्योंकि जब हम रूल 16 पढ़ते हैं इस रूल का, तो वहां लिखा है कि ट्रस्ट रूट से हो रहा है तो आप वैल्यूएशन करवा लीजिए। जब ट्रस्ट शेयर्स खरीदेगा और फिर एम्प्लॉइज को इशू करेगा, जब वो अप्लाई करेंगे अलॉट करने के लिए, इफ दिस रूट इज अंडरटेकन, अगर ट्रस्ट रूट आपने फॉलो किया है तो आपको वैल्यूएशन करवाना है, अदरवाइज वैल्यूएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ
एक और चीज है ये इशू ऑफ सिक्योर्ड बॉन्ड और डिबेंचर्स. दिस इज नॉट मच कनेक्टेड टू एसएफए कैटेगरी, इसलिए मैं इसे बहुत ब्रीफ में यहाँ पर डिस्कस करके आगे बढ़ता हूँ सर. बट व्हेनेवर यू रीड बिटवीन द लाइंस, मुझे ये बहुत बाद में समझ आया कि यहाँ भी तो वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ. ये बहुत डेप्थ ऑफ द थ्योरी है. इफ यू रीड बिटवीन द लाइन ऑफ द लॉ, आपको ये कनेक्ट होगा. सर सभी सीनियर्स और सभी कंपनी लॉ जानते ही हैं, तो सभी को एक बात पता है कि अगर हमारे डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड है और नॉन कन्वर्टेबल है, इफ वी इशू नॉन कन्वर्टेबल अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, तो डिपॉजिट्स के रूल कहते हैं कि डिपॉजिट कहलाएगा. सो अगर हम डिपॉजिट के रूल को फॉलो नहीं करना चाहते, इफ यू डोंट वांट टू ट्रीट इट एज अ डिपॉजिट, देन इट शुड बी सिक्योर्ड. And how will you secure your debenture? By creating some charge on your assets of the company. तो हम ट्राई करते हैं कि डिबेंचर को सिक्योर करें और असेट्स पर एक चार्ज क्रिएट करें, सो दैट डिबेंचर सिक्योर हो जाए और हमारे डिबेंचर डिपॉजिट में काउंट ना हो. Because unsecured non-convertible debentures are treated as deposits. So यहाँ पर जब हम लॉ को अच्छे से पढ़ते हैं तो लॉ कहता है अनसिक्योर्ड नहीं होना चाहिए. अब लॉ कहता है कि अनसिक्योर्ड कब ट्रीट नहीं किया जाएगा, जब हम कहते हैं डिबेंचर फुल्ली सिक्योर्ड. नाउ द बिग क्वेश्चन इज हाउ विल यू ट्रीट इज अ फुल्ली सिक्योर्ड. द आंसर इज अगर अमाउंट ऑफ द डिबेंचर है 100 करोड़, तो यू शुड क्रिएट अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी व्हिच इज हैविंग अ वैल्यूएशन ऑफ एटलीस्ट 100 करोड़. साइज ऑफ इशू, आपके डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं 100 करोड़ के, तो एटलीस्ट 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पर आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन प्रूव कि ये एक सिक्योर्ड डिबेंचर है. नाउ यहां पर आता है सर मुद्दा वैल्यूएशन का. हाउ विल यू प्रूव कि आपने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट किया है? इट शुड बी सपोर्टेड बाय द रिपोर्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू एटलीस्ट 100 करोड़ आज की डेट में है. So as far as issue of debentures are concerned, valuation कहीं ना कहीं जरूरत हो जाएगी. Now moving further, अगर आप डायरेक्टर्स या किसी भी कनेक्टेड पर्सन को नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो, शेयर्स इशू कर रहे हो, बदले में मिल रहा है असेट, या कोई असेट्स आपने अक्वायर किए उसके बदले में आप शेयर्स इशू कर रहे हो, डेफिनेटली वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड. असेट का भी करवाइए और इक्विटी शेयर्स का भी वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है. As far as merger and amalgamation are concerned, कंपनी लॉ क्लियरली कहता है आपको दोनों कंपनीज के वैल्यूएशन करवाने होंगे, जिस कंपनी को अक्वायर किया जा रहा है और जो कंपनी अक्वायर कर रही है. सर हम एफएम भी जब पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तब हमें वहां भी सिखाया जाता था कि इन केस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए कंपनी बी को अक्वायर कर रही है. सर अभी मैं एक पर्टिकुलर असाइनमेंट हैंडल कर रहा हूं जहां कंपनी ए में 3 कंपनीज मर्ज हो रही है, कंपनी बी सी एंड डी, दे आर गेटिंग मर्ज इनटू ए. टेक्निकली व्हाट रूल सेज, आपको 4 वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होंगे, वैल्यूएशन ऑफ कंपनी बी सी डी एज वेल एज ए, बिकॉज यू नीड टू कैलकुलेट द स्वैप रेशियो, you need to calculate exchange ratio, and for the purpose of exchange ratio you require the valuation of all the entities which are involved in this particular merger and acquisition exercise. तो यहाँ हमारे केस में 4 एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, तो इन चारों का हमें वैल्यूएशन करना होगा. और रूल कहता है ना केवल आपको शेयर्स का वैल्यूएशन करना है, बल्कि आपको स्वैप रेशियो भी कैलकुलेट करके देना है इन योर रिपोर्ट इटसेल्फ. So in case of merger and acquisition, valuation is required. Now, फरवरी 2020, फैब 2020 में एक नया रूल आया था, जहां रेगुलेटर ने एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया था. अल्दो ये रूल अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, बट ये रूल कमिंग टाइम में वी होप कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा. फरवरी 20 में एक रूल आया था कि अगर कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि किसी माइनॉरिटी के शेयर्स हमें कंपल्सरीली एक्वायर करना है, so they apply to the NCLT, और अगर NCLT अप्रूव कर देता है कि yes majority of the shareholder may acquire the shares from the minority shareholder, तो 75% majority shareholder अगर चाहते हैं तो वो minority shareholders के शेयर एक्वायर कर सकते हैं. बट NCLT फिर वहां कहेगा कि शेयर्स किस प्राइस पर एक्वायर करने हैं, it should be valued by a registered valuer. तो ये न्यू अमेंडमेंट भी कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन की बात कहता है. क्रॉस बॉर्डर मर्जर इज कंसर्न, तो उसको वहां पर प्रोविजन वैसे ही है जैसे कि डोमेस्टिक मर्जर के, तो डेफिनेटली वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड. वाइंडिंग अप अगर हम बात करें, वाइंडिंग अप की अगर मैं बात करूं सर विद रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ, तो अब बहुत छोटा सा एस्पेक्ट रह गया है, बिकॉज वाइंडिंग अप के टोटल प्रोविजन एनसीएलटी देखता है और लगभग आईबीसी के थ्रू हम डील करते हैं वाइंडिंग अप. तो वाइंडिंग अप, लेकिन फिर भी आज भी एक रूट बाकी है जब कुछ सिचुएशंस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आर देयर इन व्हिच द वाइंडिंग अप शुड बी अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट इटसेल्फ. And whenever you will require the winding up to be undertaken by the Companies Act, then valuation from the registered value is also required. As far as IBC is concerned, winding up अगर IBC के थ्रू हो रहा है तो IBC तो पहले ही कह चुका है कि हमारे सारे वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही करेंगे.
So this is on the part of Companies Act 2013 और उससे related कुछ rules. Now मैं बहुत जल्दी से कुछ important section cover कर रहा हूँ with permission of the organizer. I will try to sum up my session within 10 to 15 minutes. So please bear with me, and I would definitely happy to take the doubts of the members. सबसे पहले हम बात करते थे सबसे important section की, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, section 56(2)(7)(b. सेक्शन 56 को अगर हम बहुत क्लियरली समझें, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझें, तो सेक्शन 56(2)(7)(b कहता है कि जब भी एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, टेक्निकली प्राइवेट कंपनी, शेयर्स इशू करती है और इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो डिफरेंस अमाउंट कंपनी के लिए गिफ्ट ट्रीट होगा और इस पर लगेगा टैक्स. फॉर एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ योर इक्विटी शेयर, फेयर मार्केट वैल्यू इज ₹50. Let's take an example. Face value is ₹10, fair market value is ₹50, and you are issuing equity shares. Issue price is ₹80. आपने ऐसे 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए. What does rule says? Rule कहता है 1 lakh multiplied by 30 lakh is a gift in the hands of the company. और section 56(2)(7) भी अदर सोर्सेज में आपसे कहेंगे टैक्स लगेगा इस 30 lakh, फ्लैट 30% to 25%. Now हमें बस ध्यान ये रखना है कि शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर इशू ना हो. हाउ विल वी अराइव एट फेयर मार्केट वैल्यू? फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें, उसी के लिए हमें शेयर्स का क्या करवाना होता है सर? वैल्यूएशन. Although this valuation can be undertaken by a chartered accountant or a merchant banker depending on the method of the valuation. So valuation is required to be undertaken by chartered accountant. अगर बुक वैल्यू मेथड से सर हो रहा है तो सीए और मर्चेंट बैंकर दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डीसीएफ मेथड यूज करना चाहते हैं तो बेटर टू, तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है टू बी अंडरटेकन बाय मर्चेंट बैंकर ओनली. सो यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम है. मेंबर्स कहते हैं ठीक है फिर हम ही कर लेंगे, बुक वैल्यू मेथड यूज कर लेंगे, हम ही वैल्यूएशन कर लेंगे. सर बुक वैल्यू मेथड में मैं एक प्रॉब्लम आपको 2-3 मिनट के बाद बताता हूँ. बुक वैल्यू मेथड में एक प्रॉब्लम आती ही है जो हमारी टैक्स प्लानिंग के लिए सही नहीं होती. सो फॉर द टैक्स सेक ऑफ टैक्स प्लानिंग हमें डीसीएफ मेथड पर मजबूरी में जाना ही होता है, और वहां जैसे ही हम जाते हैं मर्चेंट बैंकर इज ओनली ऑथराइज्ड टू डू द वैल्यूएशन. अल्दो अभी पहले मैं दूसरी चीज को कवर करता हूं सर. ये सेक्शन कुछ चीजों पर एप्लीकेबल नहीं होता. पहला एक्सेप्शन है जब आप शेयर्स नॉन रेसिडेंट्स को इशू कर रहे हो. might be possible regulator had accepted this because there are only certain rules which with respect to FEMA, तो वहां वो पकड़ लेते हैं, तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है. when the shares are issued to the venture capital fund, जब VCF को आप शेयर इशू कर रहे हैं लाइक स्टार्टअप्स, और जब शेयर्स इशू कर रहे हो AIF कैटेगरी 1 and 2. I hope you are aware about this term. alternate investment funds, म्यूचुअल फंड और सीआईएस को छोड़कर जितने भी इन्वेस्टमेंट फंड हैं, सेबी रेगुलेशन कहता है सब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहलाएंगे. इवन वीसीएफ इज अ टाइप ऑफ एआईएफ राइट नाउ. वीसीएफ भी एआईएफ कैटेगरी 1 का ही पार्ट है. तो एआईएफ में सर लेकिन कैटेगरी 3 है. एआईएफ कैटेगरी 1 जो होता है वो होता है वेंचर कैपिटल फंड, सोशल फंड, इंफ्रा फंड, इनके लिए, और एसएमई फंड. एआईएफ कैटेगरी 2 जनरली बात करता है प्राइवेट इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स की, और एआईएफ कैटेगरी 3 फंड जनरली बात करता है हेज फंड्स की. यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर आपको पैसा मिल रहा है एआईएफ कैटेगरी 1 and 2 से, जो कि टेक्निकली मिलने वाला है स्टार्टअप्स को, हम ना इसे स्टार्टअप्स पे लगने वाला टैक्स बोलने लग गए थे, एंजल टैक्स बोलने लग गए थे हम प्रोफेशनल्स इसको. अब ये नहीं लगता सर. स्टार्टअप्स अगर हैं तो अगर वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 एआईएफ को शेयर्स इशू कर रहे हैं, 56(2)(7) भी एप्लीकेबल नहीं होगा. फेयर मार्केट वैल्यू 10 रुपए है और आप 50,000 पर भी शेयर इशू कर रहे हो, ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. बट मैंने यहाँ पर अभी एक मेंबर को, एक सीनियर मेंबर को एक बड़ी सी गलती करते हुए देखा है. उन्होंने सोचा मेरी कंपनी ऑटोमेटिकली स्टार्टअप है. नहीं सर, उन्होंने कर दिए शेयर्स इशू, नोटिस आ गया, और फिर वो परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें. सर स्टार्टअप वही स्टार्टअप होगा जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, और वो सर रजिस्ट्रेशन होता है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड. DPIIT का जो एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड है वो स्टार्टअप्स को रजिस्टर कर रहा है. स्टार्टअप इंडिया स्कीम में अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप स्टार्टअप हैं, और फिर ये सेक्शन आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा. नाउ बुक वैल्यू मेथड से अगर वैल्यूएशन करने जाते हैं सर, तो मैं फॉर्मूला पहले प्रिस्क्राइब करता हूं अंडर रूल 11(u)(2). मैं केवल इक्विटी की बात करके खत्म करूंगा 11(u)(2) और देन फिर एक और सेक्शन. बुक वैल्यू मेथड में यहां पर सिंपल सा इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स एंड डिडक्ट कर दीजिए बुक वैल्यू ऑफ ऑल लायबिलिटीज. यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है सर
कि ये कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एज वेल एज बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कहां से लोगे, तो कहते हैं बैलेंस शीट ड्रॉ कीजिए उस डेट की जिस डेट को आप वैल्यूएशन कर रहे हो। अब लॉ मेकर ने तो लिख दिया उस डेट की वैल्यूएशन, उस डेट की बैलेंस शीट चाहिए और बैलेंस शीट भी ऑडिटेड चाहिए, ये रूल्स में लिखे हुए हैं चीजें, बैलेंस शीट ऑडिटेड चाहिए। अब ये बहुत टिपिकल हो जाता है कि उस पर्टिकुलर डेट की मैं ऑडिटेड बैलेंस शीट कैसे ड्रॉ करूं। तो अभी जहां तक हम लोग कर रहे हैं काम, अल्दो रूल इज रूल, वहां जो लिखा है वो प्रायर रहेगा ही, बट स्टिल अभी तक जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां ही देखने में आ रहा है कि आप केवल अनऑडिटेड बैलेंस शीट भी उस डेट की ड्रॉ कर लेंगे तो वो उसको एक सफिशिएंट एक प्रूफ मान रहे हैं। इसलिए वहां पर आप असेट्स की वैल्यू ऑल बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट लेस बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज कीजिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दीजिए, ये आ गई आपके शेयर की वैल्यू, जिसको हम टेक्निकली इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। तो इस मेथड से अगर आप जाओगे तो आपकी बुक वैल्यू मेथड से कैलकुलेशन हो सकती है। अब यहाँ बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट जब ये वर्ड लिखते हैं तब आप ढंग से सर देख सकते हैं इन्होंने मार्केट वैल्यू किसी भी चीज की कंसिडर नहीं की है, केवल कंसिडर की है असेट्स की बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं की है। इट मींस यहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यू बहुत डाउन आने वाली है और ये आप एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि आप शेयर इशू करना चाहते हो बड़े अमाउंट पर और यहाँ वैल्यू आएगी बहुत कम, तो आप कभी भी बुक वैल्यू मेथड से जा ही नहीं पाओगे। इसीलिए सर हमें डीसीएफ पर जनरली जाना पड़ता है मजबूरी में। नेक्स्ट सेक्शन जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा यूज होता है हमें, जो कई मेंबर्स इग्नोर कर देते हैं, बस ये मेरा लास्ट सेक्शन है जो मैं आज में कवर करना चाहूंगा बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ट्रांसफर ऑफ अनकोटेड शेयर्स, जनरली प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स शेयर ट्रांसफर करते हैं अनलिस्टेड कंपनीज के, और हमारी ये प्रैक्टिस है कि हम 10 रुपए पर ही शेयर ट्रांसफर करना दिखा देते हैं सर। और कंपनीज एक्ट तो क्योंकि कुछ कहता नहीं, कंपनीज एक्ट ने तो ट्रांसफर के लिए कभी कुछ कहा भी नहीं कि कितनी वैल्यू पर ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न, यहाँ पर सेक्शन 50CA जो नया सेक्शन कुछ समय पहले इंसर्ट हुआ था, ये बिल्कुल वैसा ही सेक्शन है सर जो बिजनेस प्रोफेशन में 46CA है बिल्डर्स के लिए लैंड एंड बिल्डिंग, और जो सेक्शन 50C है अगेन लैंड एंड बिल्डिंग जब आपके लिए कैपिटल असेट हो, जो वहां कहा जाता है आज भी कि लैंड बिल्डिंग अगर आपके लिए बिजनेस प्रोफेशन है, स्टॉक है तो 40CA रेफर कीजिए, अगर ये कैपिटल असेट है 50 से रेफर कीजिए। और प्रोविजन बहुत सिंपल है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर अगर आप ट्रांसफर करोगे तो फेयर मार्केट वैल्यू हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही मान लेंगे। वैसा ही यहाँ पर प्रोविजन आ गया, अगर कंपनी के शेयर होल्डर अनलिस्टेड शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं and the transfer price is below than the fair market value, then the full value of consideration will be treated to the fair market value. हम fair market value को ही full value of consideration मान लेंगे। So what you need to take care? You need to take care कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप जब भी ट्रांसफर दिखाएं तब फेयर मार्केट वैल्यू पर ही वो ट्रांसफर होना चाहिए। नाउ यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू अगेन मेंबर्स कंफ्यूज रहते हैं, कई सीनियर मेंबर्स भी गलती कर देते हैं विद ड्यू रेस्पेक्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जब से मैं पिछले 1-1.5 साल से वैल्यूएशन कर रहा हूं। सीनियर मेंबर्स 11UA2 को फॉलो कर लेते हैं, जबकि यहाँ रूल आएगा 11UA1CB और वो रूल थोड़ा सा अलग है। हम खुश हो जाते हैं कि हमारी बुक वैल्यू बहुत कम आ रही है और हम बुक वैल्यू वहां पर ले लेते हैं और हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी बुक वैल्यू से कैलकुलेट कर देते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। सर आप कर दो बुक वैल्यू से कैलकुलेट, लेकिन वहां सिंपली बुक वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी नहीं होगा। As far as revenue is concerned, हमारे रॉ मेकर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत समझदार हैं, इन्होंने यहाँ पूरा मैटर रिवर्स कर दिया है। क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है इसलिए वो जानते हैं आप कम पर दिखाओगे और वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट हो। जब शेयर्स इशू कर रहे हो वो चाहते हैं कम से कम वैल्यू निकले, जब शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकले। दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ दीज टू रूल्स। 11UA1CB जैसे ही आता है, उन्होंने नहीं लिखा बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, उन्होंने लिखा मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स। तो आपके पास लैंड बिल्डिंग, ज्वेलरी और जितनी भी ये ऐसी असेट्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, उन सबकी आपको मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है। तो देखिए सर यहाँ पे लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट एक्सेप्ट फॉलोइंग। पहला, फिर आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होगी ज्वेलरी और आर्टवर्क की, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होगी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी होगी इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, और इसके बाद जो भी बचा डेटर्स, स्टॉक एक्सेट्रा, उनकी आपको कंसीडर कर लेनी है बुक वैल्यू। मैं प्रैक्टिकली अगर इसको एक्सप्लेन करूं सर, तो अगर किसी भी कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू 50CA,
और अगर उस कंपनी में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, ज्वेलरी या शेयर्स रखे हुए हैं एसेट्स के नाम पर, तो हमें पहले डिफरेंट वैल्यूअर से वो वैल्यूएशन करवाना होगा उस डेट का, और फिर उस वैल्यूएशन को कंसीडर करते हुए मार्केट वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड असेट्स प्लस बुक वैल्यू ऑफ नॉन स्पेसिफाइड असेट्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तब जाकर कैलकुलेट होगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर सर रूल बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी होगी। तो यहाँ भी अगर हम चाहते हैं तो मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन करवा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि प्रोजेक्शन थोड़े से वीक है कंपनी के और प्लानिंग पॉसिबल हो सकती है और डीसीएफ मेथड से थोड़ा सा वैल्यूएशन कम आएगा, देन बेटर टू गो विद द डीसीएफ मेथड। लेकिन फिर वहां वैल्यूएशन हमारा नहीं चलेगा, फिर वहां वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होगा फ्रॉम द साइड ऑफ मर्चेंट बैंकर। सो अभी डिस्कशन तो बहुत कुछ है सर। वैल्यूएशन अंडर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, चाहे आप सीआईआरपी में जाएं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में जाएं, या एक कंपनी डायरेक्टली सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग लिक्विडेशन में चली जाए, दोनों ही केसेस में दो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑफ ईच कैटेगरी, यहाँ टेक्निकली रजिस्टर्ड वैल्यूअर लिखा हुआ है बहुत स्पेसिफिकली, तो तीनों कैटेगरी के दो रजिस्टर्ड वैल्यूअर यहाँ रिक्वायर्ड होते हैं। अगर सीआईआरपी में है तो डेफिनेटली आईआरपी अपॉइंट करेगा, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और अगर आप कंपनी डायरेक्टली लिक्विडेशन में जा रही है तो लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा दो वैल्यूअर तीनों स्पेसिफिक कैटेगरी के। तो टेक्निकली आईबीसी के केस में तो हमेशा रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होता है। हाउ टू बिकम रजिस्टर्ड वैल्यूअर, दीज आर द स्टेप्स जो मैंने ऑलरेडी ट्राई किया था पहले सम अप करने का, और दैट्स ऑल ऑन माय पार्ट बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी हैविंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो ओवर टू यू विवेक जैन सर, विजन सर, थैंक यू सो मच। Thank you. Daya, take the questions. Two questions are there. Daya, please Yes, take. yes. So one question is whether the valuation is required under share gifted by blood relative or share acquired through transmission. As far as Companies Act is concerned, no valuation is required. यहाँ पर कोई इस तरह से valuation required नहीं है। As far as gifts are concerned, gift भी movable properties का अगर part बनते हैं definitely फिर वहाँ valuation required नहीं। But as far as Companies Act is concerned, no valuation is required from the registered value. Okay. So, and second question is share valuation in case of angel investors and its effect in income tax under section 56 to X. So what is the effect of it? Already covered this particular topic. If you Not are applicable. getting any funding from the angel investor, then you need to take care of two things. First thing is Companies Act, and other one is Income Tax Act. As far as Companies Act is concerned, there is no exception to the startups also. So definitely you need to take a valuation report from the registered value. But as far as income tax is concerned, 56(2)(7) we already exempted the startups. So you just need to check that whether your company is registered under Income Tax Act as a startup from BPIIT. If it is registered, you need not to take any valuation from the merchant banker. And if it is not registered, merchant banker की report required होगी सर। एक हमारे केस में मॉरिशस से एक फंडिंग आई है करीब 150 करोड़ रुपीस की। उस केस में वो कंपनी स्टार्टअप थी सर। हमने 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर 75,000 रुपीस पर इशू किया है, और वो स्टार्टअप था। हमने कंपनीज एक्ट में तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर मैंने वैल्यूएशन किया, रिपोर्ट हमने लगाई, वो अप्रूव हुआ, और इनकम टैक्स में हमने विदाउट एनी वैल्यूएशन वो यूज किया है, और हमारा वो ट्रांजैक्शन हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तब हमें ये स्पेसिफाई करना होगा कि हमने ये फंडिंग अरेंज की है। हालांकि वहां पर एक लिमिट है 25 करोड़ रुपीस की, 25 करोड़ रुपीस तक की फंडिंग पर ही वो एंजल फंडिंग पर एग्जम्पशन मिलती है। तो उससे ज्यादा पर डेफिनेटली आपको वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होगा। एग्जम्पशन नहीं है 56(2)(7) में, उससे कम की फंडिंग है, एग्जम्पशन है, डेफिनेटली आपको मर्चेंट बैंकर का वैल्यूएशन रिक्वायर्ड नहीं है। बट इनकम टैक्स छोड़ दें सर, कंपनीज एक्ट, हर स्टार्टअप को कंपनीज एक्ट में वैल्यूएशन लेना है। मैं रेगुलरली स्पेशली पुणे और मुंबई की जो जितनी भी कंपनीज के सर वैल्यूएशन कर रहा हूँ इंदौर में बैठ के, उनमें से एक भी आज तक नॉन स्टार्टअप तो मिला ही नहीं। सब स्टार्टअप्स हैं और सबको हम वैल्यूएशन करके दे रहे हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। What's the cover under the outsider liabilities? In the valuation method, you talk about the book value of the outsider liabilities. So what's the cover under the outside liabilities? Which liabilities will be covered? Except share capital, except reserve and surplus, वहां पर immovable, वहां पर इंटेलेक्ट जो आपकी
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स होते हैं उसे भी वो इग्नोर करते हैं, वहां पर जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं उसे भी वो इग्नोर करते हैं। सिंपली शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ऑनर का फंड छोड़ के जो भी बचा है, डिबेंचर्स, लोन, क्रेडिटर्स का इवन पैसा, शेयर कैपिटल, नेटवर्थ का क्वांटम छोड़कर जो भी पैसा बचा है मैम, इट्स कवर्ड इन आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। Thank you so much. Thanks, I'll hand over Rohit to ji. Vivek, sir. Yeah. Thanks, Rohit ji. Very well explained, answered those questions. Now I invite Mr. Prashant, CA Prashant Gurula ji to give the vote of thanks to Rohit ji. Unmute Prashant. Hello. Before thanking you, Rohit ji, I would like to ask you one thing. May I ask? Yes, please, sir. Sir, what is there? Something must be there in water of Indore actually, because there are two things famous over there. One is food, and other is the speakers, the professors, and the lecturers. Thank you, sir. So something must be there. Something must be there, because you have touched each and every aspect of the valuation course, how it is to be done, and what are the areas, what are the professional opportunities in that, and that all you have touched in very short period. So on behalf of the Rejoice and the member of all the members present over here, I would like to thank you for sharing your knowledge with us, and all the very best, and keep in touch. Thank you, Prashant ji. Now I invite our charter president Vijendra Jain to give a vote of thanks to Sandeep bhai and concluding remark. वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल। सबसे पहले तो लायन सीए विवेक जी जैन को पूरा प्रोग्राम होस्ट करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ईच एंड एवरी सीनियर्स मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई। और हमारी ओपनिंग सचिन तेंदुलकर, हमारे फर्स्ट लर्नड स्पीकर ऑफ रिजॉइस नॉलेज ऑफ द ओशन, नन अदर देन सीए संदीप जी जैन, who is our elder friend, elder brother, and very senior member in Mira Bhayandar. He is a very active in Bhayandar social group as an institute. He is always available with us. Very thankful to you, and special thanks to Rohit Khandelwal, who is from Indore. And I seen him when he was a student, and today I seen him. He is a very young chartered accountant, CS registered valuer, and partner of Spark Associates and a special faculty of Nata Professional Academy Indore. And one more want to add you that Rohit Khandelwal is also partner of CIRC chairman Nilesh Gupta, Spark Associate. So this is the toward and commitment about the profession. And Sandeep ji Jain, बहुत thank you. And Daya Bansal, Lion Vivek ji Jain, and absentia RD Lukkad sir, हमारे president Lion Manish Agrawal and PST team. And Rejoice team will come with the new initiative topic. Next program हम female women empowerment panel discussions के लिए आ रहे हैं कि what are the opportunity challenges after the COVID which is faced by the women empowerment. And second session will be coming on training on the Excel, Word and PPT. Kindly get in touch with the knowledge of the ocean. Rejoice. We are coming with something new in the era of this lockdown is until unlock. Let's spread and share the knowledge. And special thanks to both the speakers, Vivek ji Jain and Daya Bansal, and all seniors professions in the today topic. Thanks. हम लोग recording जल्दी share करेंगे. You can get connect with us. And live Facebook पे है तो आप lifetime कभी भी Facebook पे हमारे दोनों speakers को आप सुन सकते हैं. Thank you. And we will end up the session. Before that, special thanks to Prashant Gorela bhai. Prashant bhai is also the valuation expert. He is also doing the practice in the valuation. That's why we request him, because the valuer will understand the problem and merits and demerits in the topic. And to Prashant bhai, thanks to you. Just for the request, you are available with us. And he is also the active practicing chartered accountant. And he also startup. He's also invent so many startups. So thanks to Prashant bhai, and thanks KB Kothari sir, Absentia, Atul Mehta sir, UC Garg sir, सारे सीनियर्स लोगों की हमको ब्लेसिंग्स मिली। इसी के साथ हम आज का ये प्रोग्राम को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आगे हम लोग आपके साथ जल्दी आएंगे। थैंक यू ईच एंड एवरीवन।